Hello students, once again welcome back to your geography class for lesson number 3, physiography and drainage. Students, we have already completed the half part of this lesson based on the physiographic division of India. It consists the 5 major divisions: the Himalayas, the North Indian plains, the peninsula, coastal plains and island groups. Today we are going to learn about the physiographic division of Brazil. If we look the map of Brazil, so we can realize that a large part of Brazil is occupied by highlands, plateaus and small mountains. And even we are having some part as a river basin also, especially the Amazon river basin, Paraguay river basin. Likewise, if we are saying about this river basin, so we can realize that because of these river basin there is a plain formation also. So today we are going to learn about the physiographic division based on all these type of different landforms, whether they are highlands, whether they are plateaus or plains. So let's start with the physiographic division of Brazil. The physiographic division of Brazil consists of 5 different divisions: the highlands, the great escarpment, coastal region, the plains and the island groups. We will see one by one about all these divisions, that what they consist of actually and how they form the different parts in Brazil. So students, let's begin with the first physiographic division of Brazil, that is the Brazilian highlands or the highlands. If we see the map of Brazil, so towards the eastern side you can see the Brazilian highlands. The southern Brazil is occupied by the extensive plateau, and it is differently described as Brazilian highland or the Brazilian shield or the Brazilian plateau. See, this is what the whole map of South America. Okay, in that we are having towards the eastern side the Brazil. Okay, so Brazil का अगर हम साउदर्न पार्ट देखते हैं, so it is what completely a plateau part. पूरा जो है उसका साउदर्न पार्ट क्या है? There is an extensive plateau and that particular part is described as, this southern part is described as Brazilian highlands, Brazilian shield and Brazilian plateau. ये जो ब्लू से लाइन इंडिकेट किया है साइड में बॉर्डर, ये है साउदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील और इसी को जो है वो तीनों नाम से बोलते हैं. ऑल दीज आर द हाईलैंड्स ओनली, बट वी कैन से ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स ऑल्सो, वी कैन से देम द ब्राज़ीलियन शील्ड और ब्राज़ीलियन प्लेट्यू. ऑल दीज 3 आर वन एंड द सेम. ओके स्टूडेंट्स, if we observe this highland part, so we are having 2 highlands, Guiana highlands towards the north and towards the south we are having this Brazilian highland. The main part of the Guiana highland is in Venezuela. Venezuela जो है वहाँ पर Guiana highland जो actually locate करता है and it is up to the French Guiana. In Brazil it covers the state of Roraima, Pará and Amapá. See, these are the states of Brazil. As we are living in India, so we are well versed about the states of India, है ना? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, Assam, Jammu and Kashmir, Punjab, various states are there. We are well versed about it because we are learning them from our childhood, right? So likewise only, उसी तरह से क्या है, ब्राज़ील की भी कुछ states हैं, but as this year we are going to learn this Brazil first time. ब्राज़ील जो country इसके बारे में हम first time पढ़ रहे हैं. So for us this is what very new, हमारे लिए ये सब states new है, but actually these are the name of the states: Roraima, Pará and Amapá. All these are located in the north of Brazil and these actually cover the highland part of Brazil. Okay, the lower part of these highland is found in Brazil, but the highest peak of Brazil, you must remember this is the important point student, the highest peak of Brazil is known as Pico de Neblina. This is the name of the highest peak of Brazil. See, this is the map of Brazil. पूरा जो मैप है वो क्या है? साउथ अमेरिका का है. उसमें जितना ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, लाइट ग्रीन शेड, दैट इज़ व्हाट द ब्राज़ील. ओके, इन दैट ऑल्सो लोकेशन का साइन बनाकर जो ऐसे पीक का साइन बना हुआ है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली द लोकेशन ऑफ हाइएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील, दैट इज़ नोन एज Pico de Neblina. The Pico de Neblina is the highest peak of Brazil and its height is 3014 meter.
एंड इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राज़ील एंड वेनेजुएला। ब्राज़ील और वेनेजुएला की बॉर्डर पर एक्चुअली क्या है, ये पिको डी नेब्लिना पीक है। ओके, द रीजन टू द साउथ एंड ईस्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड हैव एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 मीटर। सी दैट मीन्स हियर वी कैन फाइंड द हाइट, जो एल्टीट्यूड इज़ व्हाट, द हाइट फ्रॉम सी लेवल, राइट। हाइट सी लेवल से जो हाइट होती है किसी भी लैंड पोर्शन की, वेदर इट इज़ प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन और हाई पीक, तो उसकी पर्टिकुलर क्या होती है, सी लेवल से एक हाइट होती है 200 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, 1000 मीटर, मोर देन 1000 मीटर, so it is what known as the altitude. So here in the region of east and south of Brazilian highland we can find the altitude more than 1000 meter, but in other part the altitude is between 500 to 1000 meter. दूसरे पार्ट्स में जो है वो क्या है, 500 से लेकर 1000 मीटर के बीच में हमको नज़र आता है एल्टीट्यूड, बट इट इज़ मोर इन द ईस्ट एंड साउदर्न पार्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट 1000 meters. Okay, the highlands gradually slope towards the north and slope are not very steep. नॉर्थ की तरफ हमको जो है वो थोड़ा सा स्लोपी पार्ट नज़र आता है, स्लोप उस साइड का है, लेकिन स्लोप बहुत स्टीप नहीं है. एंड इफ़ यू सी द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजॉन रिवर, वी नो दैट अमेजॉन इज़ द मेजर रिवर, सबसे बड़ी रिवर जो वहाँ की है वो कौन सी है, अमेजॉन रिवर, एंड इट फॉर्म्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज, और उससे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मीन्स मेन रिवर से जो बहुत सारी छोटी रिवर्स जो आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. सो ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजॉन रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन मेक द रैपिड वाटरफॉल. हमें जो है ये जो मेन रिवर ब्राज़ील है, ब्राज़ील की मेन रिवर कौन सी है, अमेजॉन रिवर, और बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है आकर वहाँ मिलती है, और बिकॉज ऑफ दैट मीटिंग ऑफ दिस ट्रिब्यूटरीज देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल. एंड इफ़ यू सी द टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द स्लोप, सो इट इज़ वेरी स्टीप, एब्रप्ट टाइप का बहुत स्टीप नज़र आता है नॉर्थ की साइड हमको स्लोप. एंड नंबर ऑफ रिवर्स टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स टू मीट द एटलांटिक ओशन. और बहुत सारी रिवर्स जो है वो क्या करती है उस पर्टिकुलर प्लेस यानी कि दैट स्लोप जो है नॉर्थ साइड का, वहाँ पर जो है बहुत सारी रिवर फ्लो होती है. इवन यू कैन सी द मैप ऑफ ब्राज़ील, सो यू कैन फाइंड आउट दैट रिवर अमेजॉन इज़ ऑल्सो द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर. And all these rivers, river Amazon and the tributaries of river Amazon, all these are what meeting to this Atlantic Ocean. कहाँ जाकर मिलते हैं, सबके सब Atlantic Ocean से जाकर मिल जाते हैं. So this was all about the highlands. Okay. Even some more regions, rivers like Uruguay, Paraguay and Parana, all these are originates from साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हाईलैंड्स एंड दे जस्ट एंटर इनटू द अर्जेंटीना. यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स है ब्राज़ील में, वी आर हैविंग सम साउथ फ्लोइंग रिवर्स ऑल्सो. दिस इंक्लूड यूरुग्वे, पैराग्वे एंड पराना, बट व्हाट दे आर जस्ट एंटर इनटू द अर्जेंटीना. ओके, एंड इफ यू सी, सो स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट इज स्टीप एंड इट इज़ व्हाट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द एस्कार्पमेंट. नॉर्थ साइड जो स्लोप कैसा है, ज़्यादा स्टीप नहीं है, लेकिन साउदर्न साइड जो है वो स्लोप ज़्यादा स्टीप है और वो क्या करता है, एस्कार्पमेंट को फॉर्म करता है. व्हाट इज एस्कार्पमेंट, वी विल सी द नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, द ग्रेट एस्कार्पमेंट. Though it occupies a very small area, the nature of its slope and effect it has on the climate make it a separate physiographic region. अगर हम पूरा एस्कार्पमेंट देखते हैं तो एस्कार्पमेंट इज़ वेरी स्मॉल एरिया, इट इज़ नॉट वेरी ब्रॉड और अ वेरी लार्ज लैंड फॉर्म. ऐसा नहीं है. ब्राज़ील का अगर हम पूरा लैंड एरिया देखते हैं तो उसके हिसाब से एस्कार्पमेंट का एरिया क्या है, इट इज़ वेरी स्मॉल वन, लेकिन उसका नेचर और जो स्लोप फॉर्म हुआ है, इट इज़ वेरी स्टीप स्लोप ना, बहुत ज़्यादा स्टीप है वो, तो उसकी वजह से जो है क्या हो गया है, एक अलग फिजियोग्राफिक रीजन फॉर्म हो गया है, या एक अलग टाइप का क्लाइमेट जो है वो क्या हो गया है यहाँ पर फॉर्म हो गया है. दैट इज़ व्हाट नोन एज द ग्रेट एस्कार्पमेंट. द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट. पूरा ईस्टर्न साइड जो है हाईलैंड का क्या हो गया है, सेपरेट डिमार्केट हो गया है इस एस्कार्पमेंट की वजह से. इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ द एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर. अगर इस जगह पर हम एल्टीट्यूड देखते हैं एस्कार्पमेंट का, तो इट इज़ व्हाट 790 मीटर्स. एल्टीट्यूड मतलब कि सी लेवल से जो है वो उस प्लेस की हाइट, इट इज़ व्हाट एल्टीट्यूड. तो एस्कार्पमेंट की हाइट जो है यहाँ पर हमको कितनी है, ऑलमोस्ट 790 मीटर्स है. इन सम रीजन्स द हाइट डिक्रीजेज ग्रेजुअली. लेकिन कुछ एरियाज में जाकर क्या होती है, कुछ रीजन में क्या हो गई है, हाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, इट गेट डिक्रीज्ड. इन सम रीजन द हाइट डिक्रीज ग्रेजुअली एंड द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप
particularly from Sao Paulo to Porto Alegre. पोर्टो एलेग्रे तक का, साओ पाउलो से लेकर पोर्टो एलेग्रे तक का अगर हम देखते हैं तो उतने पर्टिकुलर पार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये जो स्कार्पमेंट की स्टीपनेस है वो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा है. दैट मीन्स इट इज़ वेरी स्टीप, बहुत ज़्यादा जो है वो कर्वेचर फॉर्म हो गया, बहुत स्टीप हो गया है वहाँ पर वो, फ्रॉम साओ पाउलो टू पोर्टो एलेग्रे. एंड द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ, सी दिस इज साओ पाउलो एंड दिस इज पोर्ट एलेग्रे. यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बहुत डीप जो है वो कर्व जैसा फॉर्म हो गया. दिस इज व्हाट द स्टीप. द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स which give rise to the rain shadow area in the northeastern part of the highlands. Because of this escarpment it forms a barrier, और बैरियर की वजह से क्या होता है, जो रेन शेडो एरिया फॉर्म होता था, यानी कि जो साउथ ईस्ट फ्लोइंग विंड्स थी उनके लिए क्या हो गया, एक रुकावट बन गई, एक बैरियर फॉर्म हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गिव्स राइज टू द रेन शेडो एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड. And the region to the north of this area is called drought quadrilateral as it creates a barrier. ये जो हाईलैंड है ये क्या कर, सॉरी ये जो स्कार्पमेंट है, ग्रेट स्कार्पमेंट, इसने क्या किया, एक बैरियर टाइप फॉर्म कर दिया यहाँ पर. तो इस वजह से क्या होता है, we can see that the northeastern part of Brazilian highland, it is what known as the rain shadow area, and because of that rain shadow area we can find that the particular area is known as drought quadrilateral area. See the area which is specified with the yellow color, it is known as drought quadrilateral area, as it because of this escarpment there is a barrier to flow the wind. विंड को जो ब्लो होने के लिए जो एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है वो क्या होती है, यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, और वो विंड जो है वो जो रेन लेकर आती है जिसके से प्रेसिपिटेशन होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हियर वी कैन फाइंड ड्रॉट कंडीशन मोस्टली, एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल. Okay students, so here we completed with the great escarpment also along with the highlands. In the coming lecture we will see the three physiographic division of Brazil, the coast, the plain and the islands. Okay, thank you.